Very good morning, my dear beautiful students. Once again, I welcome you all on behalf of Bimla Devi Public School, Siliari. Today, it's 3rd of December 2021, Friday, and in your social science CG board, we are studying the lesson Human Resources. It's page number 61, and this is the first part of this lesson video series. As you know the methodology, here you will get line by line Hindi interpretation of your book so that you are familiar with the content of the lesson. When we study in the classroom, here you will get line by line Hindi interpretation, and you will be reading from your book, not from the screen, mind it. So ready with pen, paper and your book. Use your headphone and read with me from your book. Underline the important words, important sentences, and whatever you do not understand, be ready with your question. You can write down your question in your copy. I hope everyone is ready. Okay. Lesson 5th, Human Resources. मानव संसाधन. Human resources. The population of a place is counted on the basis of how many people live there. किसी जगह कितने लोग रहते हैं, इससे वहाँ की आबादी की गणना की जाती है. The population is related to a particular place. आबादी का संबंध किसी स्थान विशेष से होता है. The number of people living in a regional unit, such as a village, city or country, is called the population of that place. आप अपने बोलचाल की भाषा में कई बार जनसंख्या या आबादी शब्द का प्रयोग करते हैं, राइट? जैसे हमारे गांव की आबादी 675 है, अथवा रायपुर जिले की आबादी, जैसे कि रायपुर जिले की आबादी बस्तर जिले से अधिक है, राइट? अगर हम इन वाक्यों पर गौर करें तो पाएंगे कि इनमें किसी न किसी क्षेत्रीय इकाई का जरूर जिक्र किया जा रहा है. इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्रीय इकाई जैसे गांव, शहर, देश आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को हम वहाँ की जनसंख्या या आबादी कहते हैं. इस लाइन का मतलब ये है, राइट? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ रीजनल यूनिट सच एज अ विलेज, सिटी और कंट्री इज कॉल्ड द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस. जैसे अभी आपको मैंने कहा कि किसी क्षेत्रीय इकाई जैसे गांव, शहर, देश आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम वहाँ की जनसंख्या या आबादी कहते हैं. द पॉपुलेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट एज अ ह्यूमन रिसोर्स व्हेन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड स्किल्स आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी and their capabilities are used in some productive work. जनसंख्या या आबादी का संसाधन के रूप में महत्व तभी है जब मानव की बुद्धि एवं कुशलता का उपयोग समाज के विकास के लिए हो तथा उसकी कार्य कुशलता से कोई न कोई उत्पादक कार्य पूर्ण होता हो. Next paragraph. Many questions can be asked regarding the population of a place. किसी जगह की आबादी के बारे में कई सवाल पूछे जा सकते हैं. For instance, what is the total population of a country? जैसे देश की कुल आबादी कितनी है? At what rate is it increasing or decreasing annually? वह हर साल किस दर में बढ़ या घट रही है? What is the average life expectancy of people there? That is, how long a life are people expected to have there
ऑन एन एवरेज? वहाँ लोग वहाँ औसतन कितने साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं? What is the female and male ratio in that population? उनमें महिला और पुरुषों का अनुपात कितना है? What is the ratio of children, youth and old people in it? बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात क्या है? What is the ratio of producers, working people in it? उनमें उत्पादकों यानी काम करने वाले लोगों का अनुपात क्या है? What is the ratio of people living in cities and those living in village there? उनमें नगरों में निवास करने वाले और गांव में रहने वालों का अनुपात क्या है? How many people among them are literate and how many of them have received higher education? उनमें साक्षर कितने हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग कितने हैं? How many of them are poor and how many are rich? उनमें गरीब कितने हैं और अमीर कितने हैं? Where and how do we get all this information? यह सब जानकारी हमें कहाँ और कैसे मिलती है? Nowadays, nearly every country in the world conducts a periodic census, that is, counting the number of people living there. आजकल दुनिया में लगभग हर देश में जनगणना की जाती है, यानी लोगों की गिनती. In our country, a census is conducted after every 10 years in which detailed information about the entire population of the country is gathered. हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना की जाती है, जिसमें पूरे देश की आबादी की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है. The last census was conducted in 2011, so you can guess when the next census will take place. पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली कब होगी. Now, something to be thought here. There is a scheme to open one Anganwadi center per 1000 people in each village of the district in which you live. How will you find out the number of such centers that will have to be opened? अब आप सोच के बताएंगे इसको कि आप जिस जिले में रहते हैं उसके प्रत्येक गांव में प्रति 1000 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की योजना है. आप कैसे पता करेंगे कि आपको कितने केंद्र खोलने होंगे? The Chhattisgarh government wants to formulate a health insurance scheme for the farming families in the state, which will involve an expenditure of 5,000 rupees per person. Now, how will the government determine the amount of money it will need for the scheme? छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य में कृषक परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना बनाना चाहती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पर 5,000 रुपये का खर्च होगा. अब सरकार कैसे तय करेगी कि कितने रुपयों की आवश्यकता है? ओल्ड एज होम्स फॉर सीनियर सिटीजन्स, ओल्ड पीपल, आर टू बी ओपन्ड इन द स्टेट. हाउ विल यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सच आश्रम्स दैट विल बी नीडेड? राज्य में वरिष्ठ नागरिकों या वृद्धों के लिए वृद्धा आश्रम खोलना है, तो ऐसे कितने आश्रमों की जरूरत है या कैसे पता करेंगे? नाउ हियर डिस्कस विथ योर टीचर व्हेन द लास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन आवर कंट्री एंड व्हेन द नेक्स्ट वन विल बी कंडक्टेड. हु आर द पीपल दैट हेल्प इन दिस वर्क? What is the process of collecting the data? आप इसको क्लास में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में आप पता करके भी आइए थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज. और ये ऊपर में जो 1, 2, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस राइट द आंसर्स ऑन योर ओन. इसको भी आप लिखेंगे आंसर्स को. इट इज़ वेरी इजी.
राइट। अब यहाँ पे जो टास्क है कि हाँ, कक्षा में चर्चा करेंगे कि हमारे देश में पिछली जनगणना कब हुई थी और अगली जनगणना कब होगी, इस कार्य में कौन लोग मदद करते हैं, आंकड़ों को संग्रहित करने की प्रक्रिया क्या है। गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट्स गो अहेड। आगे पढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द सेंसस। सेंसस यानी जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े। इन द इंडियन सेंसस various types of information is gathered, such as the total number of people living in the country, the number of women and men separately, the number of educated people, the number of people in different age groups, how many people are engaged in what type of occupation, how many people migrate from one place to another for different regions and so on। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय जनगणना में लोगों की कुल संख्या, महिलाओं और पुरुषों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या, कितने लोग किस तरह के पेशे से जुड़े हुए हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग कारणों से प्रवास करते हैं इत्यादि ज्ञात करते हैं। On the basis of this information, we analyze the distribution of population in the rural and urban areas, the population density, the number of people engaged in different occupations, and the rate of decrease or increase in the population। इसके आधार पर हम जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय वितरण, जनसंख्या का घनत्व, विविध कार्य में लगे लोगों की संख्या तथा आबादी के घटने एवं बढ़ने की दर का विश्लेषण करते हैं। वी शैल डिस्कस सम ऑफ दीज पॉइंट्स इन मोर डिटेल। अब हम इसमें से कुछ बिंदुओं पर थोड़ा विस्तार से जानेंगे। To understand the capabilities and needs of a country's population, we need to find out the qualities and attributes of its people। देश की आबादी की क्षमता और ज़रूरतों को समझने के लिए हमें उसके गुणों के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। People differ from one another on the basis of their education, occupation, economic condition, age, sex, etc। लोग अपनी शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। In view of this fact, we need to understand these attributes of people। We shall now try to understand some of these important data। ऐसे में लोगों की इन विशेषताओं को समझना जरूरी हो जाता है। In view of this fact, we need to understand these attributes of people। ऐसे में इन लोगों की विशेषताओं को समझना जरूरी हो जाता है। We shall now try to understand some of these important data। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को हम समझने की अब कोशिश करते हैं। द पॉइंट इज टोटल पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ ग्रोथ। कुल जनसंख्या और वृद्धि दर। वी आर एबल टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और विलेज विद द हेल्प ऑफ द सेंसस। जनगणना की मदद से हम यह जान पाते हैं कि किसी देश, राज्य, जिले, गांव या शहर में कुल कितने लोग रहते हैं। ओविंग टू द मेथड ऑफ डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सच डेटा ऑफ द सेंसस इज एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट क्रेडिटेबल। घर घर जाकर पता करने के कारण जनगणना का यह आंकड़ा सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। The last census in India took place
in 2011. भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, according to which the total number of people in the country at the time was over 121 crore and 2 lakh. भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसके अनुसार भारत में 121 करोड़ और 2 लाख लोग थे लगभग। There were 102 crore and 87 lakh people in India in 2001. 2001 में भारत में 102 करोड़ और 87 लाख लोग थे। Thus, the population of our country increased by 17.64% in the previous 10 years. इस प्रकार हमारे देश की आबादी पिछले वर्षों में 17.64% बढ़ी है। We call this the decadal growth rate of the population. इसे हम जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। Now the question is, how many people were added to the population of India between 2001 and 2011? 2001 और 2011 के बीच कितने करोड़ लोग भारत की जनसंख्या से जुड़े? By how much does our population increase in a year approximately? एक साल में हमारी आबादी लगभग कितनी बढ़ जाती है? एक साल में, Write the answer of this question. Of the total human population of the earth, 17.5% people live in India. पृथ्वी की आबादी का 17.5% भारत में रहता है। The only country with a bigger population than India is China, where 20% of the world population lives. भारत से भी अधिक जनसंख्या वाला देश केवल चीन है, जहां विश्व का 20% रहता है। In 2011, the population of Chhattisgarh was over 2 crore and 55 lakh, which is about 2% of the total population of the country. 2011 में छत्तीसगढ़ की आबादी 2 करोड़ 55 लाख से अधिक थी, जो कि देश की कुल जनसंख्या का केवल 2% है। However, the decadal growth rate of the population of Chhattisgarh is 22.6%. लेकिन छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10 सालाना वृद्धि दर लगभग 22.6% है। The census also tells us the percentage of total number of people living in cities and those living in village. लोग शहरों में अब भारत के कुल कितने प्रतिशत लोग शहरों और गांवों में रहते हैं, यह भी जनगणना से पता चलता है। India is still a country largely inhabited by villagers, where 69% of the people live in villages and only 31% live in cities. अब जैसे आपको मैंने कहा कि भारत के कुल कितने प्रतिशत लोग शहरों और गांव में रहते हैं, यह भी जनगणना से पता चलता है। भारत आज भी ग्रामीणों का देश है, जहां लगभग 69% यानी 69% लोग गांव में रहते हैं और केवल 31% यानी 31% लोग शहरों में रहते हैं। When the country became independent, at that time only 17% of the people living in cities. जब देश स्वतंत्र हुआ था, तब हमारे देश के केवल 17% लोग शहरों में रहते थे। From this we can estimate how urbanization had increased in India in the last 60 years.
इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 20 सालों में भारत में शहरीकरण कितना बढ़ा है। What proportion of the population of छत्तीसगढ़ lives in cities? अब छत्तीसगढ़ की आबादी का कितना हिस्सा शहरों में रहता है? Nearly 23% of the people of our state live in cities now, while 20% people lived in cities in 2001. छत्तीसगढ़ की आबादी में अब देखा जाए तो हमारे राज्य के लगभग 23% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 2001 में 20% लोग ही शहरों में रहते थे। नाउ द क्वेश्चन, फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, also find out how many women and men live in it and the proportion of the urban population in it. Perhaps a detailed poster, prepare a detailed poster to display this information in the classroom. यहाँ पे लिखा है कि आप अपने जिले की जनसंख्या पता करें, उसमें कितने महिला और पुरुष रहते हैं और उनमें शहरी आबादी का प्रतिशत भी पता करें। एक विस्तृत पोस्टर बनाकर कक्षा में टांगे। डू यू बिलीव दैट द ग्रोथ ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और स्टेट इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स डेवलपमेंट? क्या आपको लगता है किसी देश या राज्य की शहरी आबादी का प्रतिशत बढ़ना उसके विकास का सूचक है? राइट द आंसर्स एंड हियर द टॉपिक ऑफ दिस डे, द हिस्ट्री ऑफ सेंसस यानी जनगणना इतिहास। The mention of the first census in the modern times is found in Sweden 1749. आधुनिक काल में प्रथम जनगणना का उल्लेख स्वीडन 1749 ईस्वी में मिलता है। In the United States of America, the process of conducting a regular census began in 1790 and 80 years after that it began in India in 1872. संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित रूप से जनगणना 1790 से शुरू की गई और उसके 80 वर्ष बाद हमारे देश में 1872 में। Countries like England and France had begun the task of regularly conducting a periodic census nearly 71 years before we did. इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश हमसे करीबन 71 वर्ष पहले ही नियमित जनगणना का काम शुरू कर चुके थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन 1865 द आइडिया ऑफ अ सेंसस। भारत सरकार ने सिद्धांत रूप से 1865 में जनगणना की स्वीकृति दी। द क्वेश्चनायर फॉर कंडक्टिंग द सेंसस was prepared during the same year. उसी वर्ष जनगणना प्रश्नावली तैयार की गई। However, the census was conducted for the first time in 1872, but it could not be implemented completely. 1872 में पहली बार जनगणना की गई, पर इसे पूर्णता के साथ लागू नहीं किया जा सका था। The process of conducting a complete census was carried out only 9 years after that in 1881. उसके 9 साल बाद 1881 में पहली बार जनगणना प्रक्रिया को पूर्णता के साथ लागू किया गया। The latest census was conducted in India in 2011, according to which the population of the country was 1210.19 लाख दिन। भारत में सबसे नवीन जनगणना 2011 में की गई है। इसके अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 1210.19 लाख थी। राइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज sufficient in this video lesson.
revise the lessons and write the answers of the questions which are asked in this section of this lesson. In the next video lesson, we will continue. Till then, I say goodbye to you.